پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دشمن کو واضح پیغام۔ عاصم منیر کے کرم کا دورہ، فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ عید منائی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کی تعریف۔ آپریشن غضب الحق میں کامیابیوں پر شاباش دی۔ کہا آپریشن کا مقصد دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ اور سرحدی علاقوں کا تحفظ یقینی بنانا تھا۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل کا وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، ملکی سلامتی، امن و استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، سکھر، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ علماء کرام کی عوام سے متحد رہنے کی اپیل۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات۔ سما کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ پیغامات میں کہا پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ مل کر انصاف، وقار اور پائیدار امن کو فروغ دیں، ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے میں کردار ادا کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا افواج پاکستان کی اصل عید وطن کی خدمت اور دفاع ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کراچی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ اور مولانا فضل الرحمان نے ڈی آئی خان میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مشکل وقت کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا امن و امان اور بھائی چارے کے فروغ پر زور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے آبائی علاقے خیبر میں نماز عید ادا کی۔ نمازیوں سے بھی ملے عید پر یتیم بچے۔ گورنر خیبر پختونخوا کے مہمان فیصل کریم کنڈی نے عیدی تقسیم کی۔ ایران کا حالیہ جنگ میں پہلی بار 4000 کلومیٹر دور ہدف پر حملہ۔ بحر ہند میں ڈیاگو گارشیا جزیرے پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ اڈے پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ امریکی اخبار کے مطابق 5 دوران انقلاب کا اب تک کا طویل ترین حملہ ہے۔ آپریشن وعدہ صادق کی 70ویں لہر۔ اسرائیل پر میزائلوں کی بارش۔ صہیونی حکام کی شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے۔ بغداد میں عراقی فوج کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز پر ڈرون حملہ، افسر جاں بحق۔ متحدہ عرب امارات کا حزب اللہ سے منسلک نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی نتنز میں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر بمباری۔ IAEA کے مطابق نتنز میں جوہری مرکز پر حملے کی اطلاع ملی ہے۔ تابکاری کی شرح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ صہیونی فوج کا اظہار لا علمی۔ شمالی شہر رامسر میں گھر پر بمباری، بچہ والدین سمیت شہید۔ مشرقی تہران میں 3 دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا آئندہ ہفتے حملوں میں شدت کا اعلان۔ کہا تمام خطرات ختم ہونے تک جنگ جاری رہے گی۔ تہران میں شہداء کی نماز جنازہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے اظہار یکجہتی۔ کہا ماسکو تہران کا وفادار دوست اور قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ ایران میں عید الفطر کے اجتماعات۔ مشہد میں امام رضا کے روزے پر ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ تہران کی سڑکوں پر نوروز کی مناسبت سے پھولوں اور تحائف کے سٹال سج گئے۔ دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ لوگوں کے درمیان اتحاد مزید مضبوط ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا قوم کے نام پیغام۔ کہا ترکی اور عمان پر حملے ایران نے نہیں کیے، پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں، ثالثی کے لیے تیار ہیں۔
खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक हमारे भाई, हमारा आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं, इख्तलाफात से सेहूनी दुश्मन को फायदा पहुंच रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईद पर मुसलमान मुल्कों के नाम पैगाम। इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बोले, ईरान जंगबंदी नहीं बल्कि जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा, नुकसानात का भी इजाला किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज की दुश्मन को ललकार, कहा ईरान आबना हुर्मुज़ में अपनी अजमत का मुजाहरा कर रहा है, हम ताकतवर हैं और ताकतवर रहेंगे। ईरान से मुतल्लिक फौजी कार्रवाइयां समेटने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया, कहा मकासद के हुसूल के बहुत करीब पहुंच चुके, अमरीका चाहेगा तो इसराइल भी जंग खत्म कर देगा। वाज़े किया, आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है जो उसे इस्तेमाल करते हैं। अमरीका ज़रूरत पड़ने पर आबना हुर्मुज़ पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। आलमी गुज़रगाह को मुश्तरका तौर पर महफूज बनाया जाना चाहिए। CBS न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ईरान का जौहरी मवाद कब्जे में लेने पर गौर कर रही है। बरतानिया ने अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी अहदाफ पर हमलों के लिए अमेरिका बरतानवी अड्डे इस्तेमाल कर सकेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद, कहा बरतानिया को पहले ही इकदाम करना चाहिए था, उन्होंने बहुत देर की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया, कहा बरतानवी वज़ीर आज़म अपने शहरियों की जान खतरे में डाल रहे हैं। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत कीमतों के होशरुबा इजाफ़े की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। रवा हफ्ते पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 170 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। ईद के पुरमसरत लम्हात की वजह से हुकूमत ने इजाफी बोझ खुद उठाने का फैसला किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए 69 अरब रुपये खर्च कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा मुश्किल वक्त में हमें एक कौम बनकर किफ़ायत शारी अपनाना होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर बचत इक़दामात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म खित्ते में जारी जंग जल्द खत्म करने के लिए दुआ गो। वज़ीर आज़म की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक रिलीफ से मुतालिक आगाह किया, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का तुर्कमानिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। जंग की वजह से मौशी मुश्किलात का सामना, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सारा बोझ खुद उठाया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र बोले, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, कौम किफ़ायत शारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले, तेल की बचत के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मिट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर मजीद महंगा, नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते भी मिट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका की 30 दिन के लिए ईरानी तेल पर पाबंदियां खत्म, सिर्फ समंदर में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत होगी। अमेरिकी वजीर खजाना ने ईरान से मुतल्लिक नया लाइसेंस जारी कर दिया। इजाजतनामा 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान महदूद तादाद में बहरी जहाजों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने दे रहा है। जापान के बाद जनूबी कोरिया ने भी ईरान से बातचीत शुरू कर दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन में नुमाया कामयाबियां मिली। नासूर के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्दों को अफगान हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। तफर्रुक़ खत्म करना वक्त की अहम जरूरत, इत्तेहाद के साथ दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुखालिफिन पर वार, बोले ये लोग डील के लिए तैयार हैं लेकिन सियासत के लिए नहीं। 2018 वाली प्रैक्टिस दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, बराह रास्त डील वाली बात अब नहीं हो सकती। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब हक की कामयाबी, हक की फतह। आलमी सतह पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार इंतहाई शानदार रहा। कौम वतन अजीज के लिए जाने कुर्बान करने वालों को याद रखे, जंग में घिरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ना भूलें। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कौम को मुबारकबाद। इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआ, कहा सरहदों की हिफाजत पर मामूर अहलकार सरमाया इफ्तिखार हैं। ईद आई खुशियां लाई, छोटी ईद पर बड़ी रौनक, घर आए मेहमानों की शीर खुरमा, खीर और मिठाइयों से तवाज़ो। जर्दे की महक, बिरयानी, बारबेक्यू और रिवायती पकवानों ने मजा दोबाला कर दिया। हर घर में मोहब्बत, अपनायत और कहकहों की गूंज। बच्चा पार्टी की 5 उंगलियां घी में, ईदी मिलते ही तफरी गाहों का रुख कर लिया। कोई झूला झूलने में मसरूफ, किसी ने ऊंट की सवारी की। लाहौर के चिड़िया घर में फैमिलीज की बड़ी तादाद उमड़ आई। कराची के चिड़िया घर में भी नॉन स्टॉप हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। जनूबी एशिया, मशरिक़ बईद और जनूबी अफ्रीकी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में बड़े इज्तिमात, हजारों अफराद की शिरकत, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका में भी आज ईद का पहला दिन। मकबूज़े कश्मीर में भारतीय फौज की सफ़ाकियत। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया। मीरवाज उमर फारूक घर पर नजरबंद। ईद उल फितर की खुशियां, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान और वसीम अकरम समेत दीगर खिलाड़ियों की फैंस और कौम को मुबारकबाद। साबिक कप्तान बाबर आजम ने किचन संभाल लिया, शीर खुरमा बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मुबारकबाद का पैगाम दिया। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ने के बाद तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने वहाब रियाज को लड़ाई कराने वाली पुप्पो करार दे दिया। पीसीबी के ईद शो में कहा, जहां 5 लोग बैठे हों वहां वहाब लड़ाई करा देता है, पता भी नहीं चलता। आकिब जावेद ने कहा वो बाबर, फखर और साहिबजादा फरहान को गेंद कराना चाहेंगे। तीनों साबिक खिलाड़ियों ने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद ने गाना भी सुनाया।